تو بہرحال مجھے جو ٹاپک دی گئی ہے، جو موضوع دیا گیا ہے، وہ گارجن حضرات کی ذمہ داریاں، یعنی جو بچے ہیں ان کے جو سرپرست ہیں، بچوں کے تعلیم و تربیت کے لیے ان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، انہیں ذمہ داریوں میں سے چند ذمہ داری پر مختصراً کچھ باتیں عرض کروں گا۔ حضرات، سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہم جو اپنے بچوں کو تعلیم دلوا رہے ہیں تو تعلیم دلوانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عموماً جب کسی سے پوچھا جاتا ہے سب کیا ہے، کیوں پڑھ رہے ہیں، آخر آپ اتنا سمے اس میں لگاتے ہیں، اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، کام دھندا چھوڑ کر کے، اگر بزنس کریں گے تو اچھی خاصی کمائی ہو سکتی ہے، لیکن ان چیزوں کو چھوڑ کر کے اس میں جو آپ وقت لگاتے ہیں، اس کا تو آخر کچھ نہ کچھ ادیش، کچھ نہ کچھ مقصد ہونا چاہیے، ورنہ کیا ضرورت ہے کہ اتنے روپے پیسے اس کے پیچھے خرچ کیا جائے؟ تو عام طور پر اس جواب کو دینے سے قاصر رہتے ہیں، یعنی جواب نہیں دے پاتے ہیں، جواب نہیں دے پاتے ہیں، اور کچھ لوگ کچھ سے کچھ بولنے لگتے ہیں، کچھ لوگ جواب ہی نہیں دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے جو بچوں کو تعلیم دلوا رہے ہیں اس کے مقصد کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ جب مقصد سمجھیں گے تبھی ان کے لیے آگے کا جو لائحہ عمل ہے، اس کی زندگی کو کس پرکار سے سیٹ کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں کون کون سے طریقے اپنانے پڑیں گے، کون کون سی ذمہ داریاں نبھانی پڑیں گی، تب جا کے آپ کامیابی سے کر سکتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، تعلیم کے مقاصد تو بہت سارے ہیں، ان میں سے جو ایک مقصد ہے صرف اسی کو میں بیان کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جو بچوں کو جو تعلیم دلوائی جاتی ہے اس کا ایک مقصد جو سب سے اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی ہمہ جہت ترقی، بچے کی ہمہ جہت ترقی، یعنی اس کو ہندی میں کہتے ہیں بچوں کا سروانگین وکاس، یعنی جو بچے ہوتے ہیں ان کے اخلاقی، ان کے جو ہے روحانی، سماجی، اقتصادی، معاشی طور پر ان کو ترقی دلوانا، یعنی ہر فیلڈ میں اگر بچہ پڑھ رہا ہے تو وہ کیریکٹر کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے بھی بچے ہوں، سماج کے اعتبار سے بھی وہ سماج کے لیے فائدہ مند ہوں، روحانی اعتبار سے، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کی بات ہے اور ایمان و یقین کے تعلق سے ہے، اس میں بھی وہ بہتر ہوں، اسی طریقے سے جو معاشی طور پر ہوں، اقتصادی طور پر ہوں، یعنی مالی طور پر بھی ہوں، اس معاملے میں بھی ان کو ترقی دلانا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو تعلیم دلانے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کے ہر میدان میں ترقی دلوانا۔ تو اب تعلیم کے مقاصد کے بعد جو مجھے ٹاپک دیا گیا ہے اس پر چرچا کرتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اب گارجن حضرات کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ دیکھیے، اسکول میں جو بچے آتے ہیں یا کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں بھیجتے ہیں، کوچنگ میں بھیجتے ہیں، یا پھر آپ ٹیوشن وغیرہ میں بھیجتے ہیں، مدرسہ میں بھیجتے ہیں، تو عموماً بچے کسی کوچنگ میں 2-4 گھنٹے وقت بتاتے ہیں، ٹیوشن میں 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، میکسیمم 5 گھنٹے کا وقت بتاتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں سے اگر 5 گھنٹے آپ نکال دیں تو کتنے بچے؟ 19 گھنٹے۔ 5 گھنٹے زیادہ تر، 5 گھنٹے عموماً اسکول وغیرہ کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے 5 گھنٹے کی ہوتی ہے، تو 5 گھنٹے آپ کے اسکول میں بتا لیں، اس کے بعد آپ کے پاس کتنے بچے؟ 19 گھنٹے۔ 19 گھنٹوں میں سے یہ جو 19 گھنٹے ہیں، یہ 19 گھنٹے بچے آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ بتاتے ہیں، آپ کے آس پڑوس کے ماحول میں بتاتے ہیں۔ اب اسکول میں جو بچے آتے ہیں اس میں تو وہ پڑھائی کر لیے، جو پڑھنا ہوا اساتذہ کے ذریعے سے، ٹیچرز کے ذریعے سے جو سکھانا ہوتا ہے سکھا لیے۔ اس کے بعد
सीखने के बाद, पढ़ लेने के बाद उसको जो जिंदगी में अप्लाई किया जाएगा, ये हमारे घरेलू तरबियत के बिना पर हो सकता है। घर में जब उसकी हम अच्छे से निगरानी करेंगे, उसके ऊपर ध्यान देंगे, तभी हम उन चीज़ों को अप्लाई करवा सकते हैं। आप तमाम लोगों ने बारहा सुना होगा कि माँ का जो गोद होता है वो आधा मदरसा होता है। यानी घर का जो माहौल होता है बच्चों के लिए आधा मदरसे का काम करता है। और ये बात हकीकत है। जैसे माहिरीन नफ्सियात ने आमतौर पर बच्चों के अखलाक और किरदार पर जो मौसर होने वाली चीज़ें हैं, जो चीज़ें असरअंदाज होती हैं और बच्चों के अखलाक और किरदार को जो चीज़ें प्रभावित करती हैं, उनको दो हिस्सों में बांटा है। एक है हेरिडिटी और दूसरा है एनवायरनमेंट। यानी एक होता है मौरूसी वंशानुक्रम और दूसरा होता है माहौल वातावरण। यानी बच्चों के अंदर जो आप देखते हैं खूबियाँ होती हैं, अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं, और बच्चों के जो है अंदर आप उसके जहन को जब देखते हैं कि उसका जहन कितना तेज़ है नहीं है, तो इनमें से कुछ खूबियाँ बच्चों को जो है नस्ली तौर पर मिलती हैं। कुछ खूबियाँ बच्चों के अंदर नस्ली तौर पर आती हैं कि उनके ख़ानदान में बाप दादा परदादा उसके ऊपर जितने लोग हैं उनके अंदर क्या क्या खूबियाँ थीं। उन खूबियों में से कुछ खूबियाँ पैदाइशी तौर पर नस्ली तौर पर बच्चों के अंदर आती हैं। और दूसरी जो चीज़ बताई गई है वो है वातावरण, माहौल। यानी बच्चे के जो अखलाक और किरदार हैं, बच्चे के जो कैरेक्टर हैं, उन पर जो माहौल होता है ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज करता है। सबसे ज़्यादा मुअस्सिर और सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली चीज़ माहौल को माना गया है। यानी आप बच्चों को जैसा माहौल देंगे, बच्चों के सामने जैसा वातावरण आप उत्पन्न करेंगे, पैदा करेंगे, उसी प्रकार से बच्चे ढलेंगे। और ये फैक्ट बात है। आप तमाम लोग इस चीज़ को बारहा मुशाहिदा करते हैं, देखते हैं कि जिस माहौल में आप बच्चों को रखते हैं, बच्चों के अखलाक और किरदार, बच्चों के अंदर वही आदत पैदा होती है। आप उमूमन देखेंगे जिन घरों में माँ बाप हमेशा लड़ते हुए नज़र आएंगे, माँ बाप जो है बिल्कुल बेढंगा होंगे, किसी से बात करने की तमीज़ नहीं होगी, गाली गलौज करते हुए नज़र आएंगे, तो उनके बाल बच्चे भी उसी तरह से आमतौर पर नज़र आएंगे। इल्ला माशाअल्लाह इक्का दुक्का ही किसी के घर से, इस तरह के घर से अच्छे बच्चे निकल जाते हैं। उमूमन आप देखेंगे जिस खानदान में लोग जो झगड़ालू तबीयत के होते हैं, उनके बाल बच्चे भी झगड़ालू होते हैं। ये आप अगर समाज में गौर करके देखेंगे तो आपको मिलेगा कि आमतौर पर यही होता है कि जिस तरीके के घर का माहौल होता है, बच्चे के अंदर भी वही आदतें आ जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो घर का माहौल होता है, जो माँ बाप का जो तर्ज होता है, अगर जॉइंट फैमिली है तो चचा हुआ, चाची हुई, दादा दादी, इन तमाम लोगों के जो आदत और अखलाक हैं, उनका जो प्रभाव बच्चों के किरदार पर पड़ता है। इसलिए सबसे जो अहम जिम्मेदारी माँ बाप की बनती है एक बच्चे के सिलसिले में, वो ये कि जब बच्चा यहाँ से पढ़ कर के घर जाए तो सबसे पहली बात तो ये है, आप हमेशा ये कोशिश करें, पर डे ये कोशिश करें कि बच्चा स्कूल से क्या पढ़ कर के आया है और क्या नहीं पढ़ा है। इस चीज़ को एक मर्तबा आप सिर्फ देख लें। जो पढ़े लिखे हैं वो तो जांच लेते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं हम तो पढ़े लिखे हैं, हम कैसे जांचेंगे। ऐसी बात नहीं। आप पढ़े लिखे, अगर बहुत सारे गार्जियन पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन अगर पढ़े लिखे नहीं है तब भी आप बच्चे से पूछ तो सकते हैं कि बेटा आज क्या पढ़ करके आए हो, कहाँ से कहाँ तक सबक मिला, बस देख लिए। इससे बच्चे पर एक मेंटली एक असर पड़ता है, जहनी तौर पर उस पर असर पड़ता है
کہ अरे वाह अगर हम सही से डेली सबक नहीं सुनाएंगे, सही से पढ़ेंगे नहीं तो हमारा जो है हमारे अब्बा फिर पूछ लेंगे तो हम क्या बताएंगे, तो वो पढ़ने पर ऑटोमेटिकली तवज्जो देंगे। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं, दूसरी जो जिम्मेदारी बनती है वो ये कि अगर आप चाहते हैं कि पढ़ने लिखने के बाद हमारा बच्चा हर एतबार से यानी अखलाकी एतबार से कामयाब हो तो आपको भी अखलाकी एतबार से अच्छा बनना पड़ेगा, आपको भी उनके सामने अच्छा बनकर के शो करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा गाली ना दे, किसी से झगड़ा फसाद ना करें, तो शुरू ही से आप जो है बच्चे के सामने, जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, जब उसे बोलना नहीं आता है, उसी वक्त से आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। आमतौर पर मियाँ बीवी के दरमियान भी जो झगड़े वगैरह होते रहते हैं, घर में एक दूसरे को जो है किसी को बुलाते हैं तो एकदम गाली दे करके बुलाते हैं। हम लोग आमतौर पर समाज में देखते होंगे कि एक दूसरे को मजाक में बड़े प्यार से गाली देंगे, अबे साला हरामी कुंडे की छिड़े, इस तरह करके बोलते हैं। हालांकि ये क्या है, आप प्यार से सोचते हैं कि हम प्यार से बोल रहे हैं, लेकिन ये तो गलत है। कितना गलत है। एक तो बोलते हैं साला हरामी, हरामी का मतलब समझते हैं, यानी उसके माँ ने किसी के साथ जिना किया है, उसके इसमें वो बच्चा पैदा हुआ। हरामी का मतलब यह हुआ कि उसके माँ पर आप जो है जिनाकारी का इल्जाम लगा रहे हैं। हरामी का ये मतलब हो रहा है, इतना गंदा लफ्ज है। फतवा की किताब में आता है कि जो किसी को हरामी बोल दे उसको पकड़ करके सबूत पेश करवाइए और ना 80 कोड़े लगाइए उसको। तो आमतौर पर हम लोग ये सब बातें जो है घरों में बच्चों के सामने बोलते हुए नजर आते हैं, बोल देते हैं, मजाक में बोल देते हैं। भाई मजाक में भी नहीं बोलना है। कोई बच्चा अगर बोलना नहीं सीखा है तब भी उनके सामने भी नहीं बोलना है आपको, क्योंकि बच्चा छोटे ही से अपने दिमाग में हर चीज को डाउनलोड करता रहता है। 2-3 साल के बाद जब बोलने की क्षमता आती है, कुछ करने की क्षमता आती है, तब फिर वही चीज जो डाउनलोड किया रहता है दिमाग में, वही चीज धीरे धीरे निकलती है। इसलिए आपको घर में बच्चों को अच्छा माहौल देना पड़ेगा। क्योंकि वक्त की तंगी है, आप तमाम लोग भी काम वाले हैं, हमारे मेहमान जो आए हैं वो भी काम वाले हैं, इसलिए अपनी बात को लंबी ना करते हुए बस मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि अगर बच्चों का भविष्य अच्छा चाहते हैं, मुस्तकबिल अच्छा चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि बच्चे हमारे अच्छे बने, तो उनके सामने अपने आप को अच्छा प्रस्तुत करना पड़ेगा, अच्छा बन करके दिखाना पड़ेगा। क्योंकि बच्चा देख करके सीखता है, पढ़ करके कम सीखता है। बच्चा आपको जो करते हुए देखता है उस पर ज्यादा अमल करता है, ना कि किताबें रट्टा मारने से ज्यादा अमल करता है। ऐसा नहीं है। इसीलिए बच्चों को दिखाइए, आप कुछ अच्छा बन करके दिखाइए, अच्छा माहौल पैदा करके दिखाइए, तब जा करके जो है बच्चे अच्छे बनेंगे और वो बच्चे हमारे घर वालों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे कौम और मिल्लत के लिए कारआमद और जो यूजफुल साबित होंगे। इन्हीं सब बातों से अपनी बात को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।